ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਅੰਕਲ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗੌਰਵ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਲ ਅੰਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ बड़े शर्मनाक खबर आ रही है इंडिया के उत्तों भी फ्रीडम ऑफ स्पीच ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ। ਸੋ बेचता कह लो भी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ केंद्र की सरकार केंद्र के कामों पर केंद्रित रहे। ये जुल्म करने का काम जो है ना वो छोड़ दिया जाए। तो देश के बदनामी कर रहे हो पूरे कंट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। सो ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? गल उसे मुकदी है, शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है योर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों मैं एक गल जरूर कह दिया, ये सरकार जे मारन ते आ गई तो भज्या नूं राह इक्को जिहा। मजबूर ना करो सानू कि असीं भी दूजे राह चल पईए। अज तक साडा रिकार्ड आ वर्ल्ड वाइड साडा रिकार्ड बन चुके आ किसानी मोर्चे का कि बड़ा पीसफुली ते बड़ा साफ सुथरा। असीं 11 ਤੇ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਗਾਂ ਤੇ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ। ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ ਚੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਫੇਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੱਬੜਕਬੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। बहुत बढ़िया बात करी हुंदल साहब ने। अब हिंदी में बात कर रहे हैं सबके साथ। हमारे जो भाई हैं उत्तर प्रदेश और हर जगह मुजफ्फरनगर स्पेशली, कि हमें संयम से काम लेना है। ये जुल्म सब क्रॉस कर चुके सरकार। जो ये हमला हुआ है ये हमें इसका निखेधी करते हैं और विनती करते हैं सब केंद्र की एजेंसियों को और जो भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभाले हुए ऑफिसर की इसकी निरपक्ष जांच हो और ढूंढा जाए किन्होंने किया है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनको उनकी बनती सजा देनी चाहिए। आप देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। और ये जो गूंगी बहरी और अंधी सरकार भी है, ये इनको दिख नहीं रहा कि आप हमारे 400 से ज़्यादा बुजुर्ग शहीद कर चुके हो। एक 1.25 लाख से ज़्यादा भारी पड़ेगा आप पे। तो आपको विनती कर रहे हैं और अल्टीमेटम दे रहे हैं किसानों की बात सुनने का। आप जुल्म जो कर रहे हो सारा हदें क्रॉस कर चुके हो। गैर संवैधानिक तरीके से पहले आपने एक कानून लागू किए हैं देश में। उनको बार बार आपसे विनती कर रहे हैं। सड़कों पे बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, 120 से ज़्यादा दिन हो गए। अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है, वाइट हाउस के सामने 30 दिन तो यहाँ पे हो गए हैं। और आप ये जो स्पेशली जो लोग हैं भोले भाले,
मैं अभी हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूं जो ये सोचते हैं कि भैया ये बीजेपी, ये हिंदुत्व का पार्टी जो भी ये बनाना चाहते हैं। सो भैया ये कोई हिंदुत्व पार्टी नहीं है, ये है कॉरपोरेट यारों की पार्टी। बाय द कॉरपोरेशंस, ऑफ द कॉरपोरेशंस, फॉर द कॉरपोरेशंस। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल गुलामी करवाई थी हमारे से, और ये अंबानी अडानी हमारे को परमानेंट गुलामी में धकेल रहे हैं। हमारा खाना छीन लिया इन्होंने। 45% बच्चे हमारे देश के कुपोषित हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, उनसे और ये खाना छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा देश बना रहे हो भाई तुम स्ट्रांग? बांग्लादेश हमारे से हर चीज में आगे निकल गया, हमारा छोटा भाई जिसको हमने आज़ादी दिलाई है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम में भी वो हमारे से आगे निकल जाएंगे। आप कौन से स्ट्रांग देश की बात कर रहे हो भाई? कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो देश के अंदर। लोगों पे अब गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी आपने। सो भैया शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। हम निखेधी करते हैं जो इन्होंने गोली चलाई है टकैत साहब पे, तो आपको पता होना चाहिए भैया महेंद्र सिंह टकैत का खून अभी भी लाल है, और पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ खड़ा है, और पूरा इंडिया। उन्होंने एक आंसू घेरा था, पूरा भारत इकट्ठा होकर उनके लिए आ गया। तो आप ये जो कर रहे हो ना कानून अपने हाथ में लेने की बात, गलती से अगर कुछ हो गया ऐसा, तो आप देश के हालात खराब करने की बात कर रहे हो। आप चाहते हो देश का माहौल खराब हो जाए, देश में आप इमरजेंसियां लगाओ। इलेक्शन आपका जो रावण की जान थी ना नाभि में, उसकी तरह आपकी जान है ईवीएम में। तो आप पे सीधा अटैक कर रहे हैं ईवीएम पे। ये ईवीएम खत्म करके पेपर बैलेट लगाओ इंडिया में। सो आपका 30-32% वोट शेयर है नहीं, वो भी आपने ईवीएम के घपले करके ले रखा है। आप तानाशाहों की सरकार है, आपको जल्दी सब्ज आएगी बंगाल में दीदी, और आपकी अकल आएगी ठिकाने पे। तो अपनी उसमें रहो, मर्यादा में रहो संविधान की, जिसकी आपने कसम खाई है। और सब पुलिस वालों से विनती कर रहे हैं, आपने संविधान की कसम खाई है, मोदी अंकल की कसम नहीं खाई। तो भैया अपने संविधान के कसम की पालना करो। और हमने भी कसम खाई है भारतीय किसान यूनियन के संविधान की। झंडा, डंडा और टोपी किसान लेके जाएंगे दिल्ली, और हम मेन सड़कों से जाएंगे और आंदोलन करेंगे। हम खरात नहीं मांग रहे आपसे, अपना हक मांग रहे हैं भैया। तो आपको अपना तय करना है कि जो भी पुलिस अफसर हैं कि उन्होंने संविधान की कसम खाई है कि किसकी कसम खाई है। और जो तुम्हें सरकार ऐसा ऑर्डर दे निर्दोष लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का, ऐसी नौकरी को रिजाइन करो। अपने जमीर का जिंदा होने का सबूत दो। जिस बंदे का जमीर मर गया वो देश कौम के लिए मरा हुआ है, हम उसे मरा हुआ समझते हैं। सो हम देश के युवा हैं, हम विनती करते हैं सब पुलिस प्रशासन से कि आपने जो कसम खाई है उसको याद रखो और संविधान की पालना करो। सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा।